Good morning, students. Today we are going to understand your process of staffing and external as well as internal sources of recruitment. Students, tomorrow you will have your examination. So best of luck for your examination. I hope all of you are giving your examination honestly. Honesty is the best policy in today's time. So work honestly, give your best, and with that note, let us start with your topic today. First, we will understand the process of staffing and internal and external sources of recruitment. Today, I will make two lectures. First is about sources of process of staffing. Second will be for your training and development. So we will complete your chapter today, and in the evening we will have your Zoom lecture. So all of you just write down your queries if you have for your Zoom lecture. Okay. So with this note, let us start with your lecture. Good morning, students. Now today we will start with very important part of your chapter, that is process of staffing. This is I would say very important for your examination. Process of staffing. This part. Process of staffing is most important part of your textbook. और योर चैप्टर, ये जो चैप्टर में से यही पार्ट है जो एग्जाम में अगेन एंड अगेन इट इज़ आस्क्ड. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग एंड एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ स्टाफिंग. ओके, नाउ व्हाट इज स्टाफिंग or importance of staffing? You can see here, as per the industrialist, it is said that a contented and experienced and creative staff is invaluable assets for the business. And you can say, as I always tell you, ki take care of your men and men will take care of all other things. Means if you get a contented, experienced and creative and honest staff who is ready to work for you, and you can say in any situation, it is not like that ki bhai when the company is earning profit they are with you, and when the company starts earning losses they would leave you. They are not you can say honest staff members. Yes or no? So recruitment is, when you are doing recruitment of the staff, you have to take into consideration what that he should have his content knowledge. उसको अपने content का सारा knowledge होना चाहिए. उसके अलावा उसके पास में experience होना चाहिए. अगर नहीं है तो you should work for their experience. उनको you should give them opportunity to increase their experience. Then they should be creative in nature. They should be innovative, creative, and last but not the least, they should be honest. Okay? So let us start with the process of staffing. The first step of staffing, it will be like ladder. अगर आप इसको staffing को put करोगे तो first step would be your हम इस तरह से आप अगर एग्जाम में भी बनाते हो, you have to make this ladder. It will start from recruitment. Just a second, spelling गलत है. It starts with recruitment and it ends at the retirement. Not only retirement but post retirement services as well. Okay, so first thing we will see is your recruitment. What is recruitment? Recruitment का मतलब in ordinary words, it is made when any member of your company he resign. अगर आपके कोई member ने resign किया है, or the member dies or retires, in that case you are supposed to do the recruitment for new member who would take their place. For example, when I came, हमारे जो सर थे क्षत्रिय सर, he retired. क्षत्रिय सर रिटायर हुए थे in 2012-13. So we were recruited at that time in place of Kshatriya sir and Sharma sir. Yes or no? So that was recruitment. In ordinary sense, you can say it is a situation, or it is a process where the probable employees apply for the job. Probable employees का मतलब क्या हो गया कि the employees who can do the work, that is known as probable employees. I am making the video in the school. थोड़ा पीछे अगर disturbance होगा तो just bear with me. Next is your sources of internal as well as external recruitment.
रिक्रूटमेंट कैसे की जाती है? देर आर टू सोर्सेस, वन इज़ योर इंटरनल सोर्स, सेकेंड इज़ योर एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स मतलब कि फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. You don't give advertisement outside the organization, but you from the inside the organization you get it. How? For example, promotion. Suppose there is one vacancy for a principal. Like for example, our principal Shailja Nair, she retired before 2 years. So we had Reema ma'am as principal now. हम लोगों ने शैलजा मैम जो है हमारे प्रिंसिपल थे, उनकी जगह पे वी टुक रीमा मैम एज आवर प्रिंसिपल. Who was she? Rima ma'am was a teacher, but instead of taking principal from outside the school who has to understand the school and everything he has to learn from the scratch, we took Rima ma'am, who was most experienced teacher, as a principal. So that is your promotion. She was promoted from teacher to the post of principal. Next is transfer. Transfer means, like for example, in Mumbai branch there is one person who retired or died or whatever, and there are 5 people in Delhi branch, so I will send one person to Mumbai branch. That is known as transfer. Here I have not increased his designation. मतलब यहाँ पर अगर दिल्ली में भी he was a manager and Mumbai also you would be manager. Yes or no? So the transfer can be done by 2 ways. It can be done with promotion, without promotion. अगर मैनेजर दिल्ली के मैनेजर का ब्रांच का मैनेजर अगर मुंबई जाता है और वो मैनेजर ही रहता है तो इट इज़ ट्रांसफ़र. बट अगर दिल्ली ब्रांच का मैनेजर मुंबई जाता है और वो जनरल मैनेजर बन जाता है, देन इट बिकम्स द ट्रांसफ़र विद प्रमोशन. नेक्स्ट इज़ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है? सपोज आई एम वर्किंग एज अ टीचर एंड देयर इज़ अ वैकेंसी ऑफ अ टीचर. सो आई विल आस्क ऑल द टीचर कि आपके फैमिली मेम्बर में कोई है ऐसा पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड टू बिकम अ टीचर. यू जस्ट गिव मी देयर रिज्यूमे. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस? मीन्स यू डोंट हैव टू मेक अ बैकग्राउंड चेक. आपको बैकग्राउंड चेक के बारे में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो पर्सन है ही केम फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ आवर करंट एम्प्लॉय. एंड इफ़ आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो आई विल बी वेरी मच कॉशियस अबाउट माई क्रेडिटेबिलिटी एंड माई गुडविल. सो आई वोंट रिफर अ पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग good caliber, efficiency, honesty, etc. So friends and relatives of employees is also one good option. नेक्स्ट इज रिट्रेच्ड एम्प्लॉय. रिट्रेच एम्प्लॉय कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि भाई अभी जैसे एयरलाइंस है, एयरलाइंस में सेल्स लोग अभी ट्रैवल कम कर रहे हैं. एट सम प्लेसेस दे आर ट्रैवलिंग वेरी हाई, बट नॉर्मली अभी देयर इज़ अ डिप्रेशन इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ इन इकोनॉमिक. डिप्रेशन इज़ गोइंग ऑन. तो मे बी सूरत में, जैसे फॉर एग्जांपल सूरत में बहुत सारे कंपनी के जो ओनर्स है उन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन ही नहीं है तो वी डोंट हैव जॉब्स फॉर यू. we can't give you salary because there is no job left here. You may come in future when the job starts. So as and when inflation would come, तो जो एम्प्लॉयज़ को हमने निकाला इन सेंस कि हमने रिमूव नहीं किया था बिकॉज ऑफ देयर इनएफिशिएंसी, बट बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन, इफ द पर्सन इज रिमूव्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज रिट्रेचमेंट. रिट्रेचमेंट के लिए टाइम पे यू गेट अ सर्टिफिकेट कि भाई आप हमारी कंपनी के मेंबर हो और हमने आपको रिट्रेच किया है एंड यू हैव राइट टू जॉइन सम अदर कंपनी. अगर आप कहीं और ज्वाइन करते हो तो आपकी जो पुरानी कंपनी है वो आपको सर्टिफिकेट देगी कि भाई येस ही इज़ रिट्रेच्ड फ्रॉम आवर कंपनी एंड इफ़ यू वांट टू हायर देम यू कैन. सो दैट इज़ नोन एज रिट्रेचमेंट. प्रमोशन विद ट्रांसफ़र मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि प्रमोट करना है और ट्रांसफ़र भी कर देना है. नेक्स्ट इज योर वेटिंग लिस्ट. वेटिंग लिस्ट क्या होता है? व्हेन वी टेक द इंटरव्यू, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो वी टेक इंटरव्यू. सपोज आई वांट टू सिलेक्ट वन पर्सन, तो आई विल टेक इंटरव्यू ऑफ 20 people. When I came for the interview, at that time there were 37 people. We were 37 members. हम 37 members थे and out of 37 I was selected. ठीक है? So I was the first choice of the management. After that, after that
I was chosen as a first member. Suppose after some time I would say कि भाई I am not interested to work in the organization or due to some reason I have some problem. So the second best alternative, the person who came second in the interview, he would get chance. It happened with our biology teacher. Biology हमके जो sir थे, he was we had Vanna teacher at that time, but she had certain problem, so she left. So the second person, that was Rana sir, he came instead of you can say Vanna teacher. So Rana sir came from waiting list. That is the example. Okay, so this is all about your sources of recruitment, internal sources. Okay, pause. Now let us move towards the external sources. अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. फर्स्ट सोर्स इज योर थ्रू एडवर्टीजमेंट. ठीक है, थ्रू एडवर्टीजमेंट में क्या है कि हम लोग, ये इंटरनल सोर्सेस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही. यू टेक इट फ्रॉम वन सेक्टर सेक्शन और वन डिपार्टमेंट, आप दूसरे डिपार्टमेंट में पर्सन को सेंड करते हो, या फिर वन सिटी से दूसरे सिटी में सेंड करते हो, या फिर फ्रेंड्स और फैमिली से लेते हो. दैट इज इंटरनल सोर्सेस. आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट नहीं देते हो. You won't give advertisement here for internal sources. Now for external sources, we have, first is through advertisement. You can see in newspapers में आपको एक पूरा कॉलम मिलेगा for vacancy. कितनी जो भी वैकेंसी है, you may give advertisement in newspaper, magazine, etc. Okay, you may also give advertisement on television. अगर आपका बजट अच्छा है तो आप टेलीविजन पे भी दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है कि एज एंड व्हेन यू गेट योर ग्रेजुएशन डिग्री, आपको जैसे ही ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है, यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड दे विल हेल्प यू टू गेट द जॉब फॉर यू. जैसे ही कोई जॉब आती है, दे विल इन्फॉर्म यू. हमारे यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, देयर वी हैव द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पर आपको अपना बायोडेटा देना है, और जब भी जहाँ पर भी जॉब होती है तो दे विल गेट इन्फॉर्मेशन एंड दैट इन्फॉर्मेशन विल इज पास ऑन टू द मेंबर. सो थ्रू एम्प्लॉयमेंट यू कैन से इंस्टीट्यूट्स. नेक्स्ट और एक्सचेंज, ये दोनों होते हैं. यू हैव गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या फिर यू हैव प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसे naukri.com एंड ऑल दैट. ठीक है. नेक्स्ट इज योर थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. उसको हम बोलते हैं कैंपस इंटरव्यू. इफ़ यू माइट हैव सीन द मूवी 3 इडियट्स. 3 इडियट्स में आपने देखा होगा कि वो बोलता है कि इनको कैंपस इंटरव्यू में जॉब नहीं मिलेगी. बिकॉज व्हाट वाज दैट, इट वॉज गेटिंग थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. जैसे ही आप आपके स्टडी के फाइनल ईयर में पहुंचते हो, आपका फाइनल ईयर के 6 महीने बाकी हैं, समथिंग लाइक दैट. एट दैट टाइम द डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज विल कम टू योर कैंपस. आपके कैंपस में आएगी, आपका इंटरव्यू लेगी, और बिफोर यू कंप्लीट योर डिग्री you will get the job. Now that is why campus matters a lot. Like for example, if you are in the campus of Indian Institute of Management A, तो आपको कैंपस से ही 3 से 4 करोड़ की सैलरी मिल जाएगी. तो अगर आप MBA करते हो, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप IIM से MBA करोगे तो आपको 3 से 4 करोड़ की सैलरी यूँ ही मिल जाएगी. ये सुनो, न्यूज़पेपर में आता रहता है. तो दैट इज़ योर फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डायरेक्टली कैंपस इंटरव्यू से. देन वी हैव थ्रू ट्रेड यूनियंस. अभी ट्रेड यूनियंस क्या होती है, जो भी वर्कर्स है जो रिट्रेस्ड है, ट्रेड यूनियंस के पास जाते हैं कि भाई मेरे पास नौकरी नहीं है, वो अपने ट्रेड यूनियन के पास जाते हैं. एंड दिस ट्रेड यूनियन दे मेक इट कंपलसरी फॉर द कंपनी कि जैसे अगर आप बाहर से मेंबर्स लेने से पहले हमारे जो मेंबर्स है, सपोज एक्स फैक्ट्री बंद हो गई और उसके 100 एम्प्लॉयज़ को जॉब नहीं है, तो वो अपने आप को एनरोल करेंगे टू द ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन में एनरोल करेंगे, और ट्रेड यूनियन में एनरोल करने के बाद में वाई कंपनी में अगर जॉब है तो दिस एक्स कंपनी एम्प्लॉयज़ विल गेट फ्रॉम ट्रेड यूनियन. थ्रू ट्रेड यूनियन उनको वो जॉब मिल जाएगा. ओके. नेक्स्ट वुड बी योर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स. कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स का एग्जांपल मैं दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन. हमारे स्कूल का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, तो वी हैव गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ कंपनी कि भाई आप हमको ये एक बिल्डिंग बना के दो. तो दे हैव देयर ओन ग्रुप ऑफ वर्कर्स विद देम एंड दे ब्रिंग दोस वर्कर्स एंड दे विल कंप्लीट द वर्क ओवर हियर.
ये सो तो अभी भी जो आपको आवाज़ आ रही है वो कंस्ट्रक्शन की आ रही होगी शायद पीछे बैकग्राउंड में। तो ये जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं दे टेक अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दे वर्क फॉर यू फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर। मतलब फॉर एग्जांपल आई एम प्लानिंग टू हैव अ नवरात्रि, तो आई वांट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। नॉर्मल सिक्योरिटी में हमारे पास में 5 सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी में के लिए मुझे 50 लोग चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग 50 पीपल आई विल मेक अ एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर्स और जॉबर्स, दे विल ब्रिंग देयर ओन 50 पीपल एंड आई एम नॉट here the benefit which I will get is I am not liable to pay them salary after my work gets over. Suppose आपको जो कोई काम शॉर्ट टर्म के लिए करवाना है तो कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स आर बेटर ऑप्शन. नेक्स्ट इज योर रिक्रूटमेंट एट गेट. रिक्रूटमेंट एट गेट क्या होता है कि एवरी कंपनी देयर इज़ अ रिसेप्शन. उनकी एक ऑफिस का गेट होता है, वहाँ पे एक रिसेप्शन होता है. यू हैव टू ड्रॉप योर रेज्यूमे देयर. और अगर कंपनी को इंटरेस्ट होगा तो दे विल कॉल यू. व्हेन आई गॉट माई BEd डिग्री आई वेंट टू डिफरेंट स्कूल्स. मैं हर स्कूल में जाके और वहाँ के जो क्लर्क है उसको अपना रेज्यूमे दे के आई थी. और आई just I completed in 2008. Within 2 months I got the job. But still after 2 years I used to get a call from different schools कि भाई आपका resume हमारे पास है, are you interested to come up and work as a teacher in our organization? So recruitment at GATE also is a good method where you can put the resume on the gate of the company and they will call you if they need you. ठीक है. Next is your मॉडर्न मेथड्स क्या है आपके कि यू गो टू डिफरेंट वेबसाइट्स जैसे naukri.com और इस तरह की वेबसाइट्स पे जाते हो एंड यू पुट योर बायोडेटा. दे ऑल्सो टेक टेस्ट्स आपके एप्टीट्यूड टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट लेंगे आपका. एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, दे विल टेक योर टेस्ट and that too online, and on the basis of that you will be selected. So these are a few modern methods where we are making use of computers and the people are getting jobs with the help of putting their resume on the websites, naukri.com and all that. Okay, this is all about your process of recruitment. Recruitment is a positive work, I would say, or positive activity where you get maximum number of people in your pool. आप एक pool create करते हो, उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को include करते हो. Now comes the second point, that is your selection. Now selection, ये सब हमने अभी complete किया, external sources, internal sources, modern method. अब हम लोग पहुँचे selection पे. तो selection is something which is a negative thing. मतलब आपने recruitment के time पे you selected 100 people. But out of 100, I would select only 10 people. So it is a negative process in such a way, मतलब आप उसमें से काट छाट कर दोगे. You will remove people from the organization. How you will do is, what is the process of selection? That is very important. This is, as I told you, a very, very, very important process. First is you वेलकम टू देम टू अ प्राइमरी मीटिंग. आप उनको एक प्राइमरी मीटिंग में वेलकम करते हो. देन यू रिसीव एंड स्क्रीन द एप्लीकेशन. प्राइमरी मीटिंग में कैसे आप वेलकम करते हो? आप रिक्रूटमेंट, जो हमारे रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस थे, जैसे रिक्रूटमेंट एट गेट और